with Guruji's grace and आज हम बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं कि गुरुजी की कृपा से उषा भसीन आंटी ने हमें ज्वाइन किया है। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि वो कब आएंगी, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से शी इज हियर विद अस एंड विदाउट टेकिंग एनी मोर ऑफ एनीबडीज टाइम आई विल पास ओवर द माइक टू हर। थैंक यू उषा भसीन आंटी फॉर जॉइनिंग अस। आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत शुक्राना टू गुरुजी एंड टू यू आंटी। Jai Guruji. Welcome to Guruji. Who am I? So I am a little bit this thing. Well, anyway, Guruji बोलते थे हर रूप में हर रंग में मस्त रहो, जैसा उन्होंने सिखाया. So I am a bit well, whatever. I was looking at my video because we are not in our residence. We are in a vacation in Goa. So it's a holiday home and I couldn't fix up things and this is all I could carry. और ये फोटो वैसे गुरुजी के हाथ का दिया हुआ है, एक संगत के हाथ से. हमारी बेटी उस समय कैम्ब्रिज में थी, तो you know probably Sanjay Sudhir, so he carried this photo to Cambridge and we brought this photo because it has no glass, and in my last shifting, one photo signed by Guruji, blessed by Guruji, the glass has broken. So we were particular that we shouldn't carry a glass wearing photo. So we brought this laminated photo. बस देखो हम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं इस फोटो से. So nice. So you can see the signatures. Yes, you can. So therefore, you know, I wanted, but I couldn't really fix. There are no nails, so where I could sit on a chair and piche photo lag sake. So anyway, that's how. And I will share a satsang how Guruji said ki har dhang se khush rehna. So Jai Guruji. Many thanks to Guruji for these blissful moments in life when we connect with Sangat, wherever, all over the globe now. And, you know, we try to relive, or Guruji makes us relive those moments of what I like to call Paramanand, not blissful, because that's a foreign language. You know, I feel ये आत्मा के रिश्ते हैं, दिल के रिश्ते हैं, इसलिए भाषा भी अपनी मिट्टी की होनी चाहिए. So that's how I feel. But I'm sure all your Sangha, they do understand Hindi, and so I would prefer to speak in Hindi because that's the language of my heart. The language of my brain, professional language is English, but this is a matter of heart. So Jai Guruji, many thanks to Sangat in California, and imagine how we are connected today. So Guruji, ye aapke chamatkar hain. There was a time when Guruji never liked that we use media. He didn't like media at all. Once I remember, I was washing my hands after langar and Guruji said ki somebody said Guruji bula rahe hain, kamre mein chale gaye. So I went and he says wo bahar TV wale aaye hain, to unhone nu kya ki जाओ मत जाओ. So picture बनानी है तो नहीं बना रही. So Big Guruji used to call it picture. So I said, Ji Guruji. So I had to convince them a lot, a major television channel in India. I said, no, this is not Guruji. Doesn't want it. So he was totally against media. And in that sense, that he didn't want to be covered by media. And I wonder if Sangat knows that even the Book of Divinity, whereas he instructed with his blessings, the satsangs got collected, but the book wouldn't publish. And during his lifetime, it couldn't get published. And it's not my satsang, so I won't like to dwell further on that, because I prefer to share what Guruji showed me. जो उन्होंने मेरे सामने किसी को कहा, या थोड़ा बहुत मैं वो भी शेयर कर लूंगी जो मुझे कहा. Otherwise, many things
जो गुरुजी के साथ अकेले में बात होती थी, हम लोग अपने परिवार के साथ भी कम ही शेयर करते हैं, वो आपकी अपनी ट्रेजर है. That's your treasure for life, and probably after another birth, if he gives moksha, it's up to him. Or if there's another birth, then it's a treasure for the next births and in memory of them on the soul. So first, let me share. There is no chronology, or maybe to put things in perspective. हम लोग जब गए तो ऐसा कुछ नहीं कि हमें गुरु की कोई खोज थी. गुरु ने हमें बुलाया, उनकी बड़ी कृपा, और अपने चरणों में जगह दी. हमें गुरु प्रथा नहीं मालूम थी. Somebody in my office suggested कि ऐसे ऐसे हैं. That year my husband got a heart attack, and it was Diwali day. They had just come, and because my father-in-law had passed away within that year, and they come to, people come, friends and family, they meet on such occasions. We were not celebrating Diwali, so they came and met, and they said कि ऐसे ऐसे गुरु हैं. My first reaction was, see, I don't believe in living gurus. That was my first reaction. और पता नहीं क्या हुआ, 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग गाड़ी में थे, and we went to Empire Estate, and I saw him, and I don't know what was, it's like a very different feeling, very, very different feeling. It was, जिसे कहते हैं ना, सचमुच आनंद वो था. And he said, oh, आगे so and so from my official this thing designation, and then told my husband कि आगे heart patient. So that day, after 8-9 months, my husband sat on the floor, and गुरुजी जैसे अपने आप करते हैं, करते रहे, करा उन्होंने. पर ऐसा कुछ कि there was such लंगर हुआ, चाय प्रसाद हुआ. It was all so strange. Strange means very unique to us. Once in a lifetime experience, first experience. And then there was langar, and then there was dance. As I said, there was Diwali. उसके बाद की हर दिवाली, हर नया साल, सब कुछ गुरुजी के चरणों में. कभी नहीं हुआ कि कौन सी पार्टी, क्या ये वो. जिंदगी इतनी सुंदर हो गई, इतनी सरल हो गई, I would say, and uncomplicated, कि जो कुछ है त्योहार गुरुजी के चरणों में है, हमें कहीं नहीं जाना. No questions कि भाई बच्चों कहाँ. And we came home late, obviously. Next day, our children, we have 2 daughters. Our children said, "आप कहाँ सुना? आप किसी बाबा के पास गए थे?" I said, "Yeah." तो कहते कि, "अरे मम्मा, what's wrong with you?" So etc. etc. I said, "तुम भी चलो." तो whatever. पर हुआ ये कि वो अगले दिन या उससे अगले दिन वो गए हमारे साथ. And they had just passed out school. So and वो सामने खड़ी हुई बड़ी वाली बेटी कहती, उसके यहाँ थर्ड आई में उसको लगा थर्ड सा है हुआ, and she feels कि काला plain robe गुरुजी ने पहना हुआ था, and it's not a normal place, etc. और फिर छोटी वाली के पता नहीं बाजू में बॉयल था, तो गुरुजी ने, उन्होंने आपस में किया हुआ था, डॉक्टर ने कहा इसको सर्जिकली निकालना पड़ेगा, हमें पता नहीं था. And she also bowed, और I think after 2-3 days वो बॉयल वैनिश हो गया. पर जब उन्होंने माथा टेका, तो जैसे ही माथा टेका तो गुरुजी ने इंग्लिश में बोला. The elder one was doing eco honors. She had entered eco honors and in DU, and तो गुरुजी ने economics का सवाल पूछा, and the younger one had joined stats honors in DU, and गुरुजी ने stats का सवाल पूछा, और they were like, looking at him कि ये क्या. And फिर गुरुजी ने वही सवाल उनको 6 महीने बाद मार्च में एग्जाम में आया. पर हुआ ये कि कुछ अजीब से मैग्नेटिक शक्ति कि हमें घर में नहीं बैठा जाता था. शाम को हमारी हर शाम गुरुजी के पास, I was incumbent, and फटाफट काम खत्म कर के भागो, और बस
गाड़ी उठाओ, चेंज करो और जाओ। और अजीब सा पुल था, कितना बढ़िया, जिसे कहते हैं ना परमानंद, जो पढ़ा था शब्द, that we saw in practice. It was such a beautiful place, if I may. और गुरु जी की तरफ देखो, मुझे तो नहीं पता था कि गुरु की तरफ आंखों में नहीं मिलानी, but I used to, and I used to do very plain talking, ये वो। और ऐसा नहीं होता कि पहले कोई मिरेकल होने लग जाते हैं एंड ऑल, बट आई डोंट नो क्या शक्ति थी कि हमसे घर में बैठा नहीं, और थोड़े दिनों बाद गुरुजी बोले कर नहीं बैठा जाता ना। So incidentally, I couldn't speak Punjabi, and I started this whatever I will quote Guruji, whatever and Guruji used to speak very fast and very, प्योर पंजाबी, वेरी फास्ट। तो मैं बोलती जी गुरु जी, फिर कई बार फिर गुरु जी थोड़ा आस्ता दोबारा रिपीट करते, फिर मैं बोल जी गुरु जी, फिर कई बार बोल तीसरी बार करते थे, और कई बार बोलते चल छड़ रहने दे। सो एंड शब्द कीर्तन भी मेरे लिए पहला ही एक्सपीरियंस था। माय हस्बैंड हैज अ बिट ऑफ बैकग्राउंड ऑफ Sikhism, but I wasn't into Shabad Kirtan and also वो भी and it was such a bliss। और आज भी हमारे साथ ये होता है कि वो शब्द जब लगते हैं तो हमें लगता है हम बस वहीं बैठे हैं दरबार में। और बड़ा बहुत ही आनंद का मतलब, it was a different life. It was a totally different life, a new chapter in life, or rather, it engulfs you in a way, it consumes you। and दिन का ऑफिस का माहौल और शाम का वो माहौल इतना अलग था, और ऐसे लगता था सचमुच कि हम लोग बिल्कुल डस्टबिन भर के आते हैं और खाली होके यहाँ से प्योर होके जाते हैं। एंड my interaction with others was very limited. It's only Guruji ने जिनसे कनेक्ट किया and he used to say कि मैं ਤੁਹਾਡਾ परिवार बना के जा रहा और यही काम आएगा। So truly speaking, संगत जी, वही परिवार आज हमारे आसपास है। They are the people, they are the family actually to us. And वैसे भी जब हम जाने लगे, कभी 7 दिन भी जाते थे, so गुरुजी 7 दिन बैठते थे, तो 7 दिन भी जाते थे, तो बाकी लोगों ने हमें राइट ऑफ कर दिया, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, दिस थॉट कि होते कहाँ है पता नहीं। And my husband was away, he wasn't working in Delhi, so mostly I was alone। And गुरुजी, then I would come ऑफिस से चेंज करके अपनी गाड़ी उठा के, तो कई बार गुरुजी तू कर ली आई है, कितना लाई है तू? So that's what Guruji would ask, and I wasn't sensible enough to say कि गुरुजी आप मेरे साथ हैं तो मैं कल्ली कैसे हुई, है ना? So anyway, so उसके बाद I'll tell you कि कैसे गुरुजी कनेक्ट करते हैं, हर चीज आपकी। After 2-3 years, our children had gone away. One had for further studies, or they went and joined a job, etc. So I was almost alone, and I had severe backache. So I couldn't drive also. I was advised not to drive. और दिन में तो ऑफिस की गाड़ी होती थी, शाम को मतलब मंदिर जाने के लिए। And would you believe, one civil servant got transferred from Chandigarh, and they were close to my house. I was in a government bungalow, and उनकी गाड़ी नहीं आई थी अभी। They were in that transit accommodation of state government. They hadn't been allotted full permanent residence, और वो जैसे होता है those in service नो कि थोड़े टाइम के लिए transit accommodation, beautiful accommodation, state government के जो हैं दिल्ली में, तो उनका हमारे घर के पास था। उनकी गाड़ी अभी नहीं आई थी, तो he would come, he and his wife, and he would drive my car, and I will go with them and come back with them. So this is what Guruji does. Every small, minute things. It's not about miracles. He's not a miracle Baba. If we only talk about miracles, it's not about miracles. The way he, I would say, takes charge of your life, and he kind of, as I said, consumes you. And if you let it,
as he used to say, ki flow vich raho. So if you surrender, then he takes charge of your life. And he used to say also, among 2-3 things that he said in making life very simple, one was surrender. Now, surrender हम बोले भी कि किया, पर it's easier said than done. Surrender कोई बहुत बड़ी चीज है. हर सवाल, we human minds, you know, हर सवाल हमारे दिमाग में आ जाता है, ऐसा क्या, ऐसा वैसा. So you know, surrender करना बहुत मुश्किल है. और हर चीज को एक्सेप्ट करो. This is what Guruji means. But I think, Sangat ji, above all the experiences or the miracles, they are very important in their own way. Guruji used to say also कि ये, you know, ये करना वो करना, कि ऐसे ये करन कोई नहीं आए, ये साडा काम कोई नहीं, means doing this miracle कहते. But he used to say कि लोगों को कन्विंस करने के लिए करना पड़ता है, जैसे लोटा ब्लेस करते थे, ये सब करते थे. But I think more important is the way he transforms your inner self, and the way you should transform your inner self. I think because he used to say, positive सोचो, अपनी सोच बदलो, अपनी सोच बदलो और positive सोचो. Now, positive सोचना, you are a doctor, Dija ji, and you know, everybody knows that our brain is wired in a certain way. So अगर हमें पॉजिटिव अपनी सोच बदलनी है, अपनी हैबिट्स बदलनी है, थिंकिंग पैटर्न्स बदलने हैं, तो उस ब्रेन को रिवायर करने के लिए वी हैव टू बी कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन दैट. It is a never ending practice that we have to execute consciously, subconsciously, unconsciously. और गुरुजी used to say कि पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो. And the other is कि surrender करो. And the moment you surrender, then he takes charge of your life, and then you start accepting. और फिर आपको मुश्किलें तो लगती हैं. You are a human being, you know. मुश्किलें हैं, घर में मेड नहीं आई है, कोरोना है, वो भी मुश्किल है. हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज मुश्किल है. लेकिन what Guruji does is that he makes you, at least he puts you on the path of acceptance. कि कोई बात नहीं. जैसे I'll give an example. जैसे for example, हम लोग थे गवर्नमेंट में थे, you were in a certain position, you were used to certain comforts, और घर में भी आपका अपना एक प्रोफाइल होता है. ये नहीं कि तुम आके जरूरत बर्तन मांजने लग जाते हो, मांजते हो, पर बर्तन मांजने लग जाते हो, या तुम्हें खाना बनाना है, तो मोस्टली हमें वो करना नहीं होता था. तो and how beautifully Guruji knew, I'll tell you later. But मुझे ऐसा लगता है कि जब सत्संग में सेवा की बात है, तो जब आप वो करते हो, चाहे आप खाना बनाने को आपको बोला या आप बर्तन मांजते हो, तो you shed all that rigid inhibition that, you know, I am so and so and I am not meant for this. And especially we girls who were brought up in a certain way, given very high education, and those who achieved something materially in life, and you know, फिर लगता है कि ये मेरा काम थोड़ी है बर्तन मांजना या झाड़ू पोछा करना. लेकिन इसको एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बात है. और why I am saying is because this is a core of our family life also. And Guruji ने फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दी, बहुत ज्यादा. So the moment we accept whatever role comes in front of us, regardless whether we have equipped ourselves for that or not. वेस्ट में डिफरेंट है, वहां सब लोग जाके काम करते हैं, लेकिन इंडिया की बात थोड़ी अलग है. यू नो, वी हैव आवर ओन कंफर्ट्स एंड वी हैव आवर ओन इनकन्वीनियंसेस. सो मेरे लिए तो मैं सोचती हूँ कि ये, मुझे लगा कि ये बहुत शिक्षा है कि भाई आपको हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है. एंड कोविड हैज टॉट एवरीबॉडी that you know, don't depend that, not कि तुम्हें बर्तन भी रोज मांजने पड़ सकते हैं, झाड़ू पोछा भी करना होगा, डस्टिंग भी करनी होगी, सब कुछ करना होगा. और जब आप उस चीज को, दिस इज अ मेटाफर ऑल्सो, जब आप उस चीज को बिना सवाल के और बिना अंदर क्लेश और दुख डाले करते हो,
तो इट बिकम्स अ प्लेजर कि ठीक है, मेरा घर है, मुझे ही तो साफ करना है, मेरे बर्तन है, मुझे ही तो करने हैं. आई एम यूजिंग इट एज अ मेटाफर संगत जी, कि जब आपकी लाइफ में और भी कुछ आता है, द मोमेंट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो आप बाकी चीजें भी एक्सेप्ट करने लग जाते हो. And I think it is not just about women. I just gave an example to be politically correct because I am a woman. पर पुरुषों के लिए भी है ये. And in that way, I think it's a good training in the West, कि especially Indian men, कि भाई वहाँ सब काम सब कोई करता है, इंडिया में तो नहीं करते लोग. और उसकी वजह से घरों में कितना क्लेश होता है. So बट गुरुजी ऑलवेज न्यू कि किसका क्या रोल है. इतनी छोटी चीज भी मुझे याद है, जब हम जाते थे, देयर वर 2 लेडीज, और उनको गुरुजी बोलते थे लंगर बनाओ. ऐसे जब कभी क्रॉस जब ले जाते थे गुरुजी रात को बड़े मंदिर, तो मुझे ऐसे कभी आया कि अगर मुझे बोल दिया करने को, तो आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ वेरी गुड कुक. इफ आई अटेम्प्ट नाउ, दैट्स फाइन, आई डू इट वेल. बट तब मुझे ना आदत थी, आई वॉज वर्किंग, और ना मैं करती थी. तो मुझे लगा कि मुझे कहेंगे गुरुजी तो मेरा क्या होगा. पर गुरुजी ने कभी नहीं कहा, गुरुजी ने कभी नहीं मुझे कहा. सो ही न्यू किसको क्या रोल है. ही न्यू इंडिविजुअली ऑल्सो आपको कह के. ही नेवर सेड तू इंज किता कर, तू इंज किता. नेवर. ही नेवर टोल्ड मी दैट. व्हाट ही सेड वाज वेरी एप्लीकेबल एंड इज एप्लीकेबल इवन टुडे. के वो प्राइवेट में जो कुछ गुरुजी बोलते थे. सो what I am saying is कि beyond miracles, संगत जी, गुरुजी is a power. I don't like to define him. ऐसे कोई बोलते हैं हमने उनको गॉड नहीं माना. What is God? Do we know what is God? Or do we know what is Mahapurush? Do we know what is Guru? It is our own, we create a persona as per our own thinking. जैसे आपका हस्बैंड आपके लिए क्या है, आपकी अगर 10 साल की शादी है, तो आपने 10 साल की शादी में जो उसका एक इमेज बना लिया, आपने लिए कंस्ट्रक्ट कर लिया, वो आपका इमेज है. दैट इमेज डजंट बिलोंग टू हिज मदर. सिमिलरली गुरुजी का इमेज आपका इमेज है. वो हाउ यू कनेक्ट विद हिम एज अ फ्रेंड. फॉर अस ही वाज एवरीथिंग. So whether you want to call it God or you don't want to call it whatever you want, I don't like to bind him in a definition, and yes, ये बोलते हैं जी उन्होंने समझने नहीं दिया. ठीक है, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना सोच है, अपनी अपनी परसेप्शन है. But he unfolds life in a very unique way each and every minute for you. It's not when he was in physical form or now he is not in physical form. But look at, वो कहते थे मैं चला जावांगा ना फिर तो समझ आएगी कि कौन आया सी. एंड इतने लाना लगन गया. तो मेरे को लगता था कहाँ गुरुजी चले जाएंगे. 1-2 बार पूछा भी, या कभी वो बात भी करते थे 1-on-1 जब भी. तो चलिए, बिकॉज जैसे संगत बढ़ने लगी तो वो वहां छोटा पड़ने लगा. तो ही यूज्ड टू से अच्छा चलिए. मैं कहा, तो हमें शुरू में तो हम गाड़ी भी अंदर ले जाते थे. थोड़े से फर्स्ट ईयर व्हेन गुरुजी केम, दैट ईयर गुरुजी कॉल्ड अस इन हिज शरण. और एक बार तो विंटर में हम 10-12 लोग भी थे. Those were the days. I mean, संगत today cannot imagine कि ऐसा भी होता था. 10-12 लोग होते थे, एक सोफा था, गुरुजी वहां बैठते थे, और सिंपल सूट पहना होता था, और यही. पर इट वाजंट हाईली एम्बेलिश्ड, और कोई डेकोरेशन नहीं होती थी. कुछ ऐसा नहीं होता था कि बड़े फूल और ये और वो. धीरे धीरे कार्पेट बिछा, उसकी जगह कुछ साल बाद वो आया, वो जो चेयर है वो आई. तो ये सब धीरे धीरे हुआ. पहले ऐसा कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सब कुछ था. मुझे याद है हमें वहां जैस्मीन लगी हुई थी ऑफ मेरे घर. तो कभी हाथ में डाल के वो लेके जाओ, यूं हाथ में पकड़ के, और कीप इट इन योर palms and so that it in the car when my husband would be driving and put in गुरुजी's feet कि बहुत अच्छी खुशबू डाल दिए. फिर हम लोग कोई 4-4, 6-6 इंच के मैरीगोल्ड के गार्लैंड्स डालने लग गए. थोड़े दिनों बाद अनाउंसमेंट हो गई कि कोई फूल नहीं ले आएगा. This is a lesson for Sangat. I must share it. And
अनाउंसमेंट होगी कि कोई फूल नहीं ले आएगा। तो कर्नल जोशी हैं, गुरुजी के साथ काफी रहते थे, तो उनसे तो हमने पूछा कि क्या हुआ, क्यों गुरुजी ने ऐसे बोला। कहते ही इज कंसर्न्ड दैट हाउ टू डिस्पोज ऑफ दीज फ्लावर्स। नाउ संगत जी, इफ वी थिंक अबाउट इट, how concerned he was. And it is not about spirituality. Even on earth, his journey in a human form was such that we have so much to learn, so much to practice, and so much to follow. That would be actually following him. And so this is about flowers. Yes, he liked that you dress up well, you come nicely to Guruji Sharan. He always liked it. He didn't like that you are shabbily dressed and all. And he always liked that you live well. उन्होंने कभी नहीं कहा ये छोड़ो, ये करो. He always liked कि अच्छी कार ड्राइव करो, अच्छा ये करो, अच्छा वो करो. सब अच्छा करने को गुरुजी ने कहा. तो कार का इट रिमाइंड्स मी कि एक बार ये हुआ कि हमें गाड़ी दूसरी भी लेनी थी, तो गुरुजी से पूछा या गुरुजी ने खुद ही कहा कि तू गड्डी लेनी है ना. जी गुरुजी, तो ओ ले ले. तो ओ जड़ी उन्हें ली है. Again connecting to the same Sangat who was driving my car for some time, you know. So in government you feel little awkward कि किसी को पूछो तुमने क्या कार ली है, you know, because people have different mindset in government than in business. So I was hesitant because I knew him, but I mean I said आपने कौन सी गाड़ी ली है, गुरुजी ने कहा है मुझे भी वही लेनी है. So I asked him. तो he said accent. So okay जी. So हमने बुक कर दी. अब थोड़े दिन बाद उन दिनों मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे, तो then he said कि गुड्डी बुक हो गई. हाँ जी गुरुजी. तो इंज कर, तो it was December. It was I think the last week or third week of December. तो इंज कर, तू अगले साल ले ले. Now go listen. Is it God? तो अगले साल ले ले, तेरा ना नवा मॉडल हो जाऊगा. Now God thinks that God tells you कि तेरा अगला साल का मॉडल की भी चिंता है. So he said, to my husband said, गुरुजी हो ना, उन्होंने कंपनी वाले इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, और तो कहते ठीक है फिर जा, फिर ले ले. मतलब we did not say yes. जैसे कुछ संगत है, संगत जी, जिन्होंने उस समय गुरुजी ने कहा रात है तो उन्होंने कहा रात है, गुरुजी ने कहा दिन है तो उन्होंने कहा दिन है. हमें वो समझ नहीं थी, वो बुद्धि नहीं थी, या जो भी था, वो हमारा कर्म. So I said no. He said कि ले ले. एक दिन बाद कंपनी का फोन आया कि सर हम आपकी गाड़ी नहीं दे पाएंगे बिकॉज वो कुछ असेंबली लाइन में प्रॉब्लम है, तो हम आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में देंगे. So my husband says, so what about the discount? So he says कि नहीं सर, वो तो कंपनी का फ्लॉ है, so डिस्काउंट तो मिलेगा आपको. हो गई जी बात. शाम को हम गुरुजी के पास चले गए. तो वहाँ किचन के बाहर एक साइड बोर्ड है जिसमें क्रॉकरी वगैरह रखते. गुरुजी ना सत्संग से पहले वहाँ शर्ट पैंट अकॉर्डिंग टू द वेदर और शॉर्ट्स पहन के, अपने ट्रेनर्स पहन के वहाँ बैठे होते थे. तो मैं गई, कहते गड्डी ले ली तू. मैं क्या गुरुजी ऐसे ऐसे हुआ. तो गुरुजी कहते चल खड़ी रह, अंकल नु छेड़ांगे. Is this God? It's a friend, right? Is it God? It's a friend. इसे चल खड़ी रहे, अंकल नु छेड़ांगे. So like friends, you know, tease their friend. So मैं खड़ी हो गई. Uncle was parking and he came. And गुरुजी said, चल लिया, अंकल चाबी लिया, bless कर दे ये. So he says, गुरुजी होता गड्डी नहीं आए की होया. Guruji knows everything, right? Even without my telling. So he says, गुरुजी वो कंपनी ने कहा कि गाड़ी अगले साल आएगी, कुछ वो है. You know what Guruji said? Now this is how he taught us. Guruji said, चलिया गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी हुंदी है. मतलब जब गुरुजी ने कहा था कि तू अगले साल ले ले, तेरा नया मॉडल हो जाएगा, तो we should have said कि हाँ जी गुरुजी ठीक है जी, अभी जाके बोलते हैं कि हम अगले साल लेंगे.
पर हमने तो मोड़ी बात ना, हमने उस बात पे अपना तर्क डाला, अपना आर्ग्यूमेंट डाला, एंड वी डिड नॉट एक्सेप्ट, वी डिड नॉट ओबे what he said, or we did not understand, or we were fools, whatever it is. Issue is, so this is how he taught. And what now I recall so many things and I say, even a mother, even a parent अपने बच्चे को इतने प्यार से बार बार नहीं समझाता। गुरुजी ने कभी अगर उनकी कोई जैसे ये बात नहीं मानी तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला, चलिया गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी है। उन्होंने नहीं डांटा कि हाँ मैंने तो तुझे पहले कहा, हम होते पेरेंट तो हम तो ये बता, तुम्हें पहले कहा था ये मत करो, तुम ये कहा था। दिस इज हाउ वी टॉक ना, दिस इज हाउ वी चाइल्ड आवर चिल्ड्रन। पर गुरुजी ने कहते इतने प्यार से, गुरुजी ने कहा चलिया गुरुआं दी गल नहीं मोड़ी दी हुंदी है। See, that is Guruji. That's Guruji. And it's a different issue कि वो गाड़ी काफी साल रही। एक बार हम दोनों जा रहे थे, हमारे डॉटर के इन-लॉज में कुछ दिल्ली से बाहर डेथ हो गई थी उसके नाना जी की, एंड वी वर गोइंग एंड टुवर्ड्स यूपी, एंड एक वो आया, आई थिंक रोड रोलर आया और वो ऑपोजिट डायरेक्शन से, एंड ही हिट अस इतना कि वो जो आगे बम्पर होता है सारा उड़ के कहीं 200 मीटर्स परे गिरा, पर हमें तो मतलब खरोंच भी नहीं आई। सो एनीवे गुरुजी की बातें तो बड़ी वो हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट जैसा हो, अगर इफ आई वर द ओल्ड पर्सन आई वुड हैव फेल्ट कि हो ये मैंने कैसा सजाया है, ये कितना खराब मैंने किया, ये तो अच्छा नहीं हो रहा, और उसी चीज में मैं अपने आप को दुखी कर लेती। अभी भी थोड़ा सा तो मतलब अपने आप को डिस्टर्ब तो कर लेती हूँ, दुखी ना किया हो। लेकिन गुरुजी ने ये सिखाया कि जैसा समय है वैसा कर लो भाई। फोटो यहाँ रखा मतलब तो गुरुजी की फोटो से मतलब तो सत्संग करने से कोई बात नहीं। अगर बड़ा नहीं सज रहा है, मार्केट में थोड़े से मैरीगोल्ड के फूल मिले, मुझे हार मिला, जब वो टांग रही हूँ तो टिक नहीं रहा है, तो मैंने खोल दिए फूल और लगा दिए वो हार के जैसे कैसे। So he has taught कि accept the way you are. I'll juxtapose two situations for you कि गुरुजी की हर सिचुएशन में सेम रिस्पॉन्स नहीं होता था। His reaction wasn't the same. He would change his thinking as per the situation. Let me have a sip of water. There was a wedding in Punjab, and it was being the Sangat was being invited along with Guruji. जैसे गुरुजी देते थे invitations हाथ से लिख के सबको, और फिर जाते थे हम लोग। तो दिस मैन वाज अच्छे वो समर्थ लोग थे, मीन्स वेल टू डू, एंड सो गुरुजी, आई रिमेम्बर ही वाज एट चरण सेवा कि गुरुजी कितने लोग या जो भी, तो गुरुजी ने कहा मेरी बड़ी सारी संगत जो है वो ट्रेन से आएगी, जलंधर जाना था। सो तू की इंतजाम किया? गुरुजी ने कहा, उन्होंने कहा कि गुरुजी मैंने बहुत अच्छी डीलक्स बसें लगा दी हैं। गुरुजी कहते मेरी संगत ना बसां च नहीं जाती, तू कारां लगा। कहते गुरुजी बड़ी सोहणियां बसां डीलक्स। he says no, तू कारें लगा। so he arranged cars। हो गया जी, हम शादी पे गए, ब्यूटीफुल मैरिज फार्म हाउस में थी। तो वहां का सत्संग भी सुना देती हूँ। बहुत लोग, पंजाब में जैसी लेविश वेडिंग्स होती हैं, और थोड़ी देर के बाद जो बच्चे के फादर थे, मतलब जो हमारे होस्ट जो लेके आए थे, ही वाज अ सीनियर ऑफिसर इन गवर्नमेंट, एंड तो उनका मुंह उतरा हुआ। गुरुजी ने कहा की होया कि गुरुजी मिठाई खत्म हो गई। ऐसा मतलब जो भी माय पंजाबी इज लिमिटेड, सो कि ऐसा कैसे हुआ? तो गुरुजी वो कहते नहीं गुरुजी ज्यादा लोग आ गए तो खत्म। कहते जा कमरा देख। तो जब वो कमरे में गए तो फिर भरा हुआ।
That is miracle. So I'll just do the smattering of miracles also. So anyway, so वो एक situation है. The other situation is Guruji took us to a resort. Also, this was a Sunday and we went early. और हम मेरे हस्बैंड आए हुए थे, तो हम बैठे जब गए तो गुरुजी जमीन पे पैर फंसा के टप फैला के और अपने बैठे हुए जमीन पे कार्पेट पे. तो जैसे मैं गए तो गुरुजी, हाँ उषा आंटी आ गई, बैठो बैठो बैठो, चलो जी आओ जी, चलो चाय ले आओ जी, उषा आंटी आई. तो गुरुजी ना सिर पे भी बिठाते थे, पटकते भी थे. सो गए जी, चाय आई, चाय पी ली. तो कहते हुन जाओ. ले माय फेस फेल कि अभी तो बड़ी वो हो रही थी खातिर. अभी कहते जाओ, कहते जाओ तो टैची बंद करो. आई सेड टैची बंद करो कहाँ? टैची मतलब सूटकेस. तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने दिन के लिए जाना है, ठंडी जगह जाना है, गर्म जगह जाना है, वी डिडंट नो. हो गया जी, नोबडी डेयर आस्क गुरुजी. हम बाहर निकल आए तो एक अनदर कपल वी सॉ, तो उन्होंने भी उधर को हेलो हाय, यू नो पीपल वुड नॉट रियली सी आई टू आई, क्योंकि ये नहीं पता कि किसको बोला और किसको नहीं बोला. सो यू डोंट वांट टू रिवील. सो थोड़ी देर बाद वो जोशी अंकल दिखे, तो हाँ, तो मतलब कुछ लोगों से आप ज्यादा वो थे. सो ही सेज टैची बंद करने का हुक्म हुआ है. हाँ जी. कहते पता किसी को नहीं है, जाना कहाँ है. ठीक है जी. So we went home, packed a few clothes and हुक्म था कि ऐसे आ जाना है, इतने बजे यहाँ वापस आ जाना है. So we came back or whatever, we joined that. So now the two buses, beautiful deluxe buses were arranged, and एक बस में गुरुजी भी बैठ गए, हम भी बैठ गए. And we went. और सो गए रास्ते में लोग. सुबह 3-4 बजे आवाज आई, चाय लो जी, चाय लो. सो हम उतरे और पूछा कि जी चाय पी. तो हमने वो चाय वालों से पूछा, ये सड़क कहाँ जाती है? तो they said कि जी ये तो नैनीताल जा रही है. Then we knew कि we were going to Nainital. Okay, so these are Guruji's ways. Anyway, we went. It was perpetual party. जैसे गए, खूब वहाँ नया रिजॉर्ट बना था. हम यहाँ सामने वाले कमरे में गुरुजी, और सुबह नाश्ता, फिर कढ़ाइयाँ चढ़ जाती थी जैसे शादी वालों में घरों में होता है. वेरी ब्यूटीफुल अरेंजमेंट. एंड वी वेंट एंड यू नो नाश्ते होते थे. उसके बाद कभी थोड़ा सत्संग या डांस, नॉट फॉर्मल सत्संग, जस्ट टुगेदर बी विद सिट विद गुरुजी एंड चैट एंड व्हाट ऑल. और फिर गुरुजी नैनीताल घूमने ले जाते थे. तो हम, गुरुजी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ शॉपिंग, तो आगे आगे गुरुजी दुकान में, पीछे पीछे हम सारे. जैसे यू विजुअलाइज वो जो गांव के बच्चे नहीं आते, फैमिलीज आती हैं आगे आगे, माँ बाप और पीछे पीछे छोटे छोटे बच्चे. तो हम सब ऐसे. तो गुरुजी दूसरे दरवाजे से बाहर निकले, हम भी बाहर निकल जाए. बेचारा दुकानदार सोचे इतने लोग सडनली हम बाहर. फिर गुरुजी बोटिंग पे ले गए. फिर गुरुजी डोंट डिसाइड कौन किस बोट में बैठेगा. ये हमेशा गुरुजी का डिसीजन होता था. कहीं शादियों में ले जाते थे, गाड़ी किसकी जाएगी और कौन ड्राइव करेगा. नॉट दैट द ओनर वुड ड्राइव नेसेसरली, नो. सो ये सब भी गुरुजी के अरेंजमेंट होते थे. दीज वर हिज वेज ऑफ कनेक्टिंग. सो आई से कि गुरुजी बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट भी हैं. सो ही एनीवे जी हो गया. And so once during this one of the trips in Nainital, the host said कि गुरुजी मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा है कि मेरे यहाँ चाय पी लें. So वो यहाँ के बड़े ट्रांसपोर्टर हैं. ठीक है जी. Now we went. अब ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में कोई प्रॉपर फर्नीचर नहीं था, कुछ नहीं था. कहीं कोई कुर्सी पे किसी पे गुरुजी बैठ गए, थोड़ी लिमिटेड होंगी, किसी पे 2-4 और लोग हैं. देयर वर सम सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, देयर वर बिजनेसमैन, देयर वर ऑल. जैसे गुरुजी की संगत होती है, डाइवर्स पीपल, तब तो लिमिटेड होती थी. तो यस, देयर वर सेलेक्ट पीपल, वन वुड से. बिकॉज बहुत सारे लोग ऑब्जर्व करते थे जी यहाँ तो बड़े और ऐसे लोग आते हैं, छोटे लोगों की तो छोटे मीन्स थोड़ा कम मीन्स के लोगों की जगह नहीं है. तो गुरुजी का उसका अपना एक रीजन था व्हिच ही यूज्ड टू से. सो एनीवे, तो वो बैठ गए. कोई जमीन पे भी बैठ गया, तो कोई टेबल पे बैठ गया. नाउ आई एम जस्ट जुक्सटापोजिंग कि वहां तो गुरुजी ने उनको कह दिया कि मेरी संगत बसांच नहीं बैठ दी है, और यहाँ बस में तो लाए चलो, वो तो एक बात है. लेकिन
साथ में कहाँ बिठा रहे हैं और खुद भी कहाँ बैठ रहे हैं. So he was so flexible. So what I started with my photo and my Guruji today is that he made you feel कि तुम्हें जिंदगी में इतना flexible रहना है. Rigidity doesn't serve. जैसा मौका आए फ्लो में रहो. ठीक है, ये भी ठीक है, गुरुजी की मर्जी है. So and you have to thank, at least I am only grateful कि एटलीस्ट वो हमें लाए हैं. हम नॉर्थ की ठंड से बच के गोवा पहुंच गए, अभी तक सुरक्षित है, वहां रखा है, हम भी रखेंगे. सो these are the lessons which he, without saying, by demonstrating, उन्होंने दिए. So बहुत ब्यूटीफुल है जी. उस दिन फिर वहां वो मिले, एनीवे ओनर मिले, तो उन्होंने माथा टेका. नाउ द ओनर वाज अ मुस्लिम, good friend of the host. So that's another point कि गुरुजी के दरबार में ना कोई धर्म, ना जाति, ना रीजन, ना सोशल स्टेटस, किसी चीज का कोई वो नहीं था, सिस्टम नहीं था. एवरीबडी इज वेलकम. Everybody is welcome. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदी, नॉन हिंदी. उन्होंने सिख जिनके घर में नंगे सिर वाले नहीं होते, वहां गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ गुरुजी जो क्लीन शेवन है उनके फोटो हैं, और उन्होंने उनको शिव पुराण पढ़ना सिखा दिया, आरती रोज करते हैं. और बहुत से ऐसे लोग जिनको कि those who do not know Punjabi, they don't even know much of Hindi, forget about Punjabi. So they, Guruji ने उनको गुरु ग्रंथ साहिब सिखा दिया. I remember once very, I think Vice Air Marshal, he is from South and still in Guruji Sangat, and he said, Guruji, ये समझ में नहीं आ रहा for गुरबानी. तो गुरुजी ने कहा, तनु समझने की नु किया, तू समाधि ला. That's it. So anyway, coming back, so he said कि गुरुजी वो जो थे, जो ट्रांसपोर्टर थे जिनके ऑफिस में हम गए, तो उन्होंने कहा गुरुजी औलाद कोई नहीं है. तो गुरुजी ने कहा तिन्ना विचों नहीं है. Now the host didn't understand. They were close friends, but he didn't understand Guruji. Guruji कहते मैं क्या तिन्ना विचों नहीं है. तो he, obviously the man understood. He said नहीं गुरुजी. तो कहते चल फिर छोटी नू लेके आई शामी सत्संग. तो शाम को वहां पे सत्संग होता था रिजॉर्ट में. So that means he had 3 wives and there was no children from the any of the 3. Now the youngest one came in the evening as directed by Guruji. Guruji blessed, and after 9 months she delivered a baby boy and came to Bada Mandir, and Guruji named him Murad. So this is Guruji. His ways, his teachings are so different. I mean, you cannot. Therefore, I seriously feel there's no need to bind him. There's no need. And what I said, that he takes charge, he knows everything about you. He knows what you are, what you were. कोई लोग आते थे तो सो एंड सो की बेटी. अब एक किस में तो उनको ये भी था कि जो वाइफ का नाम लिया तो हस्बैंड को नहीं पता कि इनका ये फैमिली में किसकी बेटी क्या नाम, बिकॉज वो नाम शायद नोन नहीं था ज्यादा. तो कहते मुझे तो नहीं बताया, तो पर गुरुजी को पता. He showed so many ways कि he could be at different places at different times. उसका भी सत्संग है. He loved कि आप संगत से मिलो, बोलते थे हेलो हेलो करो, हेलो हेलो करो. These were his words. And that you connect. Whereas अपने आप तो उन्होंने कुछ लोगों से he knew किससे किसको connect करना है, जैसे कौन सी गाड़ी में कौन जाएगा, कौन चलाएगा. So you know, these are very very unique ways of telling you and teaching you. And how he connects even today, I'll tell you what.
एक बार याद है पंजाब एक और शादी में ले जा रहे थे गुरुजी, and we were in a car. There was another couple, both in civil service, and उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी जानी थी और मेरे हस्बैंड को ड्राइव करना था. तो हम चारों उस गाड़ी में गए, and my husband drove fast and we crossed करनाल etc etc, और वहाँ एक फूड कोर्ट है, वहाँ रुकना था. तो जब क्रॉस कर गए तो पीछे से फोन आया कि गुरुजी ने कहा यहाँ सब मिलेंगे. तो फिर ये भागे पीछे, वापस मुड़े कि हम तो वो क्रॉस कर आए हैं. सो क्रॉस करा, फिर आके फटाफट खड़े हो गए. And after 2 minutes, there was a beautiful fragrance of Guruji on that GT road. Those who have been on GT road, they would understand कि जहाँ एक सेकंड भी ट्रक और बसें और कारें और कोई भी ट्रैफिक रुकता नहीं है, वहाँ पे गुरुजी की खुशबू. And I knew, I said, this is Guruji's pilot, this fragrance. And after a minute or so, Guruji's white Contessa arrived. And you know what? Guruji knew that he's done this, so he told my husband, "Uncle, tu gaddi agge la." Means Guruji ki aage gaadi lagao. Now, who dare drive ahead of Guruji? And his driver was also very smart. So anyway, he was instructed, so he had to do it. So he drove in front. And थोड़ी देर के बाद फिर we were to shift to Patiala. So थोड़ी देर के बाद गुरुजी said कि चल हुण आजा, पीछे आजा. So this happened. Okay, that's a long satsang of that wedding, how we came at night and suddenly, and Guruji means along with Guruji. But what I'm telling you, that how he's connecting across time. That was with Guruji. It must have been about 2000, 2001 or so, whatever, I don't know, that year. Now come to, I fast track to 2012. Guruji is not in physical form. We had some issue in the family and serious issue. So obviously we both were very disturbed, and my husband was also disturbed. He never shared like men are कि मतलब वो गाड़ी बहुत खराब तरीके से चला रहे हैं, etc etc. So एक दिन हम उसी दिन मंदिर गए, ऑब्वियसली जाते थे तो मंदिर गए, जब बाहर निकले तो वही मिल गए जोशी अंकल. तो वो बात करने लग गए. तो अक्सर वो आते थे तो हैव अ स्मोक एंड देन मिलने लग गए, बात करने लग गए. धीरे धीरे बात करते करते बहुत लंबा हो गया. एंड वी थॉट कि क्यों नहीं जा रहे हैं. तो एनीवे, तो हम लोग, माय हस्बैंड वाज इम्पेशेंट, सो वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्किंग इन बड़ा मंदिर. तो हम लोग पार्किंग में चले गए, वो वहां भी साथ साथ चले गए. अब थोड़ी देर के बाद इनको लगा कि अब क्या, तो वो गाड़ी में बैठ गए मेरे हस्बैंड ड्राइविंग सीट पे. तो मैं भी थोड़ी देर खड़ी रही, मुझे ऑकवर्ड लगा, पर फिर मैं भी बैठ गई. और फिर उन्होंने इशारा किया तो इन्होंने अपनी शीशा गाड़ी का नीचे किया और उन्होंने अपनी बाजू अटका दी गाड़ी के शीशे दरवाजे पे. एंड ही स्टिल स्टार्टेड टॉकिंग. मतलब वो जा नहीं रहे थे, सो माय हस्बैंड वाज कि क्या है ना. तो थोड़ी देर के बाद he lifted his arm and he says, चल अंकल हुण जा ते गड्डी राम नाल चलाया कर. और भाषा वही जैसे गुरुजी की. So I'm juxtaposing this across a decade. कि तब की गाड़ी चलाई हुई और गुरुजी ने बोला तू मेरे आगे गड्डी ला. And he taught him that you are not driving, you're driving. Whereas Touchwood, he's a very, very sensible driver. But whatever. So, and now when we were in a very, very disturbed state, and he did two things. One, that I know what is happening in your life. Okay. And second, he's through a sangat, he's directing that गाड़ी राम नाल चलाया कर. And then my husband said, उसके बाद तो मतलब कोई साइकिल भी चली जाती थी ना, तो मैं उसको जाने देता था कि भैया जाओ जाओ, तो मुझे नहीं मतलब कुछ कहना. So this is what I'm saying, कि if we perceive, if our antenna is
directed well, then we catch his frequency. पर हाँ, अपने एंटेना को डायरेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है, and to keep it directed, to keep it focused, so that we are able to catch his frequency is what matters. और उसमें गुरुजी ने बहुत सिंपल किया हुआ है, as I like to say कि he didn't say, मुझे तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि तू ये पाठ कर या तू शिव पुराण पढ़. मेरे सामने कुछ लोगों को बोला था उन्होंने, कुछ लोगों को शिव पुराण ब्लेस भी किए हैं, but you know it is individual, it is totally individual. Therefore कोई ये बोले कि जी मेरे को ये कहा पीला रंग नीला रंग ये ऐसा वो ऐसा, मेरा एक्सपीरियंस तो है, आई एम नोबडी, आई एम नो अथॉरिटी, बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इट इज योर ओन. अगर आप अपने गुरु की फ्रीक्वेंसी को कैच करके उसको एनकोड नहीं कर सकते हो तो कोई दूसरा आपके लिए नहीं करेगा. इट इज ओनली यू हु कैन decode all that is there, and it's your inner journey, and he really facilitates that inner journey, provided you stay focused on what he said, that be positive, और पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो, सरेंडर, फ्लो में रहो. And another he said कि what I love to share is कि we don't have to be bothered about what others are saying. Others in the sense कि भाई कोई जैसे अगर संगत में ही है बोल रहे हैं तो sometimes we lay too much of importance, give too much of emphasis. Positive सुनो, पर I don't know how much to involve yourself. या असल बात ये है कि दूसरे का देख के, if other person is more blessed in material terms, or you think is having a more comfortable life, and that should trouble you, no. Because mostly तो हमारे लोगों की चिंताएं वही है ना, फर्स्ट वही है कि उसके पास ज्यादा पैसा है, उसकी बड़ी नौकरी है, उसकी फैमिली ज्यादा अच्छी है या उसका बड़ा घर है, all that. So उसका एक बहुत छोटा सा सत्संग है, मैं शेयर करूंगी कि एक बार चरणों में मैं बैठी हुई थी तो गुरुजी बोले कि कोई आया, somebody came and they said कि गुरुजी हमारे आए उधर हमारे फार्म पे. So गुरुजी asked me कौन है, तो I told him they were VVIPs, family of India. So I said गुरुजी हैं. कहते फिर क्या गुरुजी कह रहे हैं कि हमारे उधर आए. गुरुजी ने कहा ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, जिन्हें आना है ਇੱਥੇ आवे. So I told them, I said गुरुजी वो कह रहे हैं जी, गुरुजी कह रहे हैं कि मैं, I mean obviously I rephrased, I said गुरुजी कह रहे हैं कि यहाँ आए, यहाँ blessings लें, है ना. तो वो ठीक है जी, चले गए. अब गुरुजी फिर कहें कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, जी गुरुजी. वो चले गए. थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर बोले, उषा आंटी ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ. Now that has stayed with me, that he really meant, he repeated 2-3 times कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ. मतलब अगर हम अपने मन से ये निकाल दें कि भाई उसका बड़ा ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, अगर किसी का बड़ा घर है तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ. Those who don't understand Punjabi, for them means how does it matter to you? It is only your own thought, right? कि किसी का बड़ा घर है तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, किसी की बड़ी फैमिली है, बड़ा पैसा है, बड़ा सोशल स्टेटस है, बड़ी नौकरी है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ. And in that, I know it's not easy. It's not easy. You tend to compare, especially your family, if there are 2 sisters or 2 brothers who are very socially or financially apart. So, you know, you tend to compare, and people, society tends to compare. They are in the habit of comparing. I mean, but how can 2 souls' journey be different? They may be together in a family here, but the souls have very different journey. And so if we kind of entangle ourselves in all these things, so life is going to be complicated. And to make it simple, Guruji made it so beautiful
that ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? Free yourself of all these thoughts. पॉजिटिव सोचो. सबसे बड़ी संगत जी, सबसे मुश्किल है अपने अंदर की जर्नी. सबसे मुश्किल तो वही है. गुरुजी बोलते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो एक जूठे बर्तन की तरह होते हो, मैं उसको पहले अंदर से मांजता हूँ, फिर बाहर से चमकाता हूँ. And what we feel, sorry for the simile, but what comes to my mind is literally, as I said, शुरू में हम जाते थे और बाहर निकल के लगता था कि हम डस्टबिन खाली होके आ रहे हैं. So what comes to my mind, the image that comes to my mind is that of a pig. You know, उसको आप नहला दो, धुला दो, फिर बाद में फिर वो कीचड़ में घुस जाता है. Same we human beings are. गुरुजी कितना हमें मांझा अंदर से बाहर से, हम फिर वही करते हैं. So our persistent effort, our continuous journey is to cleanse our own inner self. Rest is okay. Rest is okay. And another thing that a couple of years, 2-3 years back, Guruji gave messages, and in many ways I said, I don't say कि मुझे ऐसे किसी के message. I mean, whatever I perceive, and then when I stopped doing it, then again there was a satsang, and so I take it as message कि हमें वो करना है. It's 3 things that Guruji, we learned that Guruji is not very happy the way satsangs are being conducted. One is there is too much of pomp and show. There is too much of expenditure involved in satsangs arranging. It's fine if you are blessed with a lot of financial worth. Fine, it's up to you. पर वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास कम है उसको लगे कि मैं तो कर ही नहीं सकता. And secondly, even those who can, they may think that I would put this money to a more different use, even in the name of Guru. You know, it's not that you make it very elaborate and you kind of show it, and it doesn't have to. It is not necessary. That's why I said कि शुरू में गुरुजी के एक फूल नहीं होता था. गुरुजी सिंपल चोले पहनते थे और सब सिंपल होता था. हमें तो जो गुरुजी का मन होता था, जो एक रात उन्होंने मेरे को जूती ब्लेस की, इट्स अ सिंपल वेलवेट जूती. सो यू नो, शुरू में गुरुजी वही पहनते थे. So what I mean to say, and I have personally experienced, I don't know, Kshama Guruji, कि जब आप अगर आप सत्संग अरेंज कर रहे हैं, and if your thought and your effort and your time and energy goes only in decoration, then I don't know how much of it is inner journey, how much you enjoy the bliss, because I mean, whatever. If it is too elaborate, आपका ध्यान तो हमेशा सिस्टम में और उस अरेंजमेंट में जाएगा ना. आपका ध्यान और आपकी सोल और आपका जो कनेक्शन बन रहा है उसमें नहीं जाएगा. After all, you know, you have only 2 hands. And you only have 24 hours, and you only have so much to absorb. So गुरुजी ने, और हम, हाँ, जब माता जी चले गए, फिर कभी वो सत्संग तो सुनाऊंगी, तो वो जलंधर हम गए, and we saw गुरुजी ने सिंपल प्लेन वो जो मरूनिश कलर का कॉटन होता है वैसा कुर्ता और लुंगी पहनी हुई है. Not even silk. So it doesn't have to be. अभी भी हम एक दो संगत जैसे दिल्ली में, they are not that they are not, they are very well off people, but उनके घर में इतना अच्छा simple, not over the top, 2 flower vases होते हैं और simple सत्संग होता है. हाँ, साफ सुथरा है. गुरुजी was very particular that it should be very neat and clean. वो भी कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं. जैसे आज मैं सोचूं यहाँ, it's not my home, it's a rented apartment where we are, and it's not clean to my satisfaction or whatever, or Guruji so did it today, I can be distressed that the help who has been coming till date every day and makes the house to whatever extent spotlessly clean did not arrive today. Can you imagine? Yeah, it just came to me now that the house could not be cleaned. You know,
So I have only done mopping where I'm sitting with Guruji's photo. So yeah, it just dawned on me now while talking to you, Sangatji. So it is up to me. If I feel upset, if I want to be very distressed, कि हो ये क्या हो गया, गुरुजी नाराज होंगे, क्या गुरुजी मेरे साथ नाराज हैं? अब नाराज हैं वो, मैं क्यों ऐसा सोचूं? उनकी मर्जी है, उन्होंने मुझे जहां रखना है रखा है, उन्होंने मेरे को हेल्प दी है, उन्होंने सब कुछ किया है. If I surrender that way, then I have to free myself of all those negative thoughts and thoughts of wanting. I have to be peaceful. I have to be content. So, Sangatji, this is what we have to practice. And Corona has taught us so much. And Guruji used to say, by the way, "Age time bade kharab aa rahe hain. Kudiyan da vyah kar do." Like when our daughter got married, when the boy and the girl, and वो अलग सत्संग है, तो जब माथा टेका दादा, he said, "दूजी दा भी ब्याह कर दे." So, you know, he used to say कि आगे टाइम बड़े खराब है आ रहे हैं, टावे टावे दीवा जलेगा, मतलब दूर दूर दिया जलेगा, और टाइम बहुत खराब आ रहे हैं. He used to impress upon लड़कियों की शादी जल्दी कर दो, and ये वो. So I feel जब समय सेम नहीं है, तो हमारे थॉट्स या हमारी प्रैक्टिसेस सेम कैसे रह सकती हैं? And if Guruji is doing all this, yes, as long as our thoughts are positive and we are pure and we don't mill, and yeah, by money he used to say, किसी का बुरा मत करो, किसी का भला करो, हो सके तो भला करो, और किसी गरीब की मदद करो, किसी की बेटी की शादी कर दो. उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई तुम बड़ा पॉम्प एंड शो करो, तुम ये करो, तुम वो करो. And that is individual. So it was wonderful sharing satsang with you. It's over an hour, Dirjaji, now. No one can go on and on, but some other day. And many, many thanks to you and to your Sangat for arranging all this and for giving me the opportunity to share my heart. And many thanks. Jai Guruji. जय गुरु जी आंटी, बहुत आनंद आया, स्पेशली जब आप जक्सटापोज करके दो दो सिचुएशंस का बता रहे थे ना. इट वाज सो ब्यूटीफुल. बिल्कुल उस कॉन्टेक्स्ट में आप वहीं पे ले गए जैसे हमें. वी कुड लिटरली इमेजिन एंड गेट द फील ऑफ इट. सो थैंक यू सो मच आंटी. एवरीबody feeling really really blessed. Thank you so much aunty. It's totally a blessing for me, and thank you so much. ये स्वरूप Love you. है गुरुजी का. ऐसे लग रहा है जैसे गुरुजी इसमें से बस बाहर निकल रहे हैं, लिटरली. And love to all of you. Yes, last thing, most important is Guruji used to say, "Rab kolo daro nahi, Rab nu pyar karo." You know, we all are trained from childhood in a way कि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे माथा टेको, ये करो, वो करो. गुरुजी ने हमें उसमें से भी बाहर निकाला है. That it is love that matters. Most important is, and if Sangat is Guru form, love Sangat. And so we should only spread love. So I hope Guruji that through my tongue you spread your love a little bit, then I am very very grateful. Mera bahut bahut shukrana. Or please, lots and lots of love to you all, and may all stay blessed with Guruji. Thank you. Thank you aunty. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Guruji. Okay. Okay. Bye bye. Bye bye. I couldn't be together. Yeah. Now. Yes. Thank you, Guruji. Thank you. Love you. Love you all of